Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the next lecture, I would like to go through the summary of the last lecture. So, in the last few lectures, we were talking about bonds and their valuations. Bonds are debt instruments which are used by companies to get financing. हमने bonds के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी, bonds के classification, bonds के कितनी किस्मों के होते हैं, and how they work out. और उसके अलावा then we figured out how to value bonds and valuation में काफ़ी सारे concepts हमारे सामने आए. जिस तरह हमने देखा कि bond को value करने के लिए हम उनको different components में देखते हैं. एक तो coupon payments हैं और उसके बाद हमें एक final जो par value वापस मिलती है जो originally हमने invest की होती है. So how to discount them back and how to get a value of a bond. So we figured out that. So and after that we found the yields and all these kind of things. So बॉन्ड्स में जब हम बॉन्ड्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जब अगर हम कैपिटल मार्केट से किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज टेकिंग अ लोन इन द लोन जैसा कि बॉन्ड्स हैं, एंड द अदर ऑप्शन इज टेकिंग एक्विटी जो कि आज का टॉपिक होगा कि व्हाट इज एक्विटी, हाउ एक्विटी इज यूज्ड बाय द बिजनेसेस टू गैदर मनी, एंड उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, और all these kind of things. I would like to say again कि I'm giving you a basic framework. I'm telling you about bonds, I'm telling you about equity, but try to make your own mind. जब आप एक बिजनेस सिचुएशन में आएंगे तो यू हैव टू डिसाइड दैट आपने लोन लेना है या इक्विटी इशू करनी है. तो अगर आपको इन सब चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छी तरह से इल्म है और आप इनको अच्छी तरह से समझते हैं तो then you will be able to either take bonds or equity investment or whatever. So try to understand these concepts conceptually and try to apply them on different problems. Basically अगर आपको concept समझ आ जाता है तो that's a huge achievement for both of us. उसमें concept समझने का फ़ायदा यही होगा आपको कि आप उसको किसी भी situation पे apply कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस करें. आप ये चीज़ की एसेंस को समझने की कोशिश करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय अ थिंग, है क्या चीज़ है, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. सो विद दैट आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर, and that will be a very interesting part because equity investment is a much researched area. Equity investment जो है that is one of the most important source of financing for a business in the corporate world, and finding ways to use it and understanding it is very valuable skill for a financial manager. So let's start. Today we will do introduction to stocks and stock valuation, right? So first I will tell you about stock. What exactly is a stock? I will tell you about the characteristics of stocks, how you can buy stocks, sell stocks, what kind of gains you make on a stock, what kind of income can be generated from stocks, and उसके बाद हम देखेंगे कि stock value कैसे किया जाता है, what are the different valuation techniques, which are used in the industry, and how can you use those valuation techniques to find undervalued stocks, and if you find any undervalued stock you can buy that stock and you can make money on that, or you can if you find an overvalued stock you can short that stock. Shorting is another concept which we'll talk about in future. अभी shorting शायद आपको सही समझना है, जब derivatives की तरफ जाएंगे तो I'll tell you what is shorting. उसके अलावा एक और concept है derivatives में futures का. So बजाय इसके कि हम अगर हम अपने एनालिसिस के बाद समझते हैं कि कोई किसी स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है तो हम डिफरेंट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स या ऑप्शंस वैसे बाय करें तो बेटर ऑप्शंस बाय कर सकते हैं स्टॉक के ऊपर, और जिसकी वजह से हमें उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हमारे लॉसेस भी मिनिमाइज होंगे, एंड वी कैन गेन अ लॉट ऑफ मनी. अगेन that is a topic for a future date when we'll study derivatives. So stay put and you will find out about a lot of interesting stuff. Right, so what are the learning objectives of this lecture? After going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics: introduction to stocks, stock valuation, stocks. These are equity paper representing ownership. Shareholders are part owners of the company. If you look at the balance sheet when the company issues shares to raise money, such shares would be shown on the liability side of the balance sheet of the company.
राइट, दे आर शोइंग, दे अगर हम बैलेंस शीट उठा के देखते हैं तो ये लायबिलिटी साइड पे शो होते हैं। हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर होल्डर्स आर पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। पार्ट ओनर से मुराद है कि अगर एक कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं तो उसके 1000 ओनर्स होंगे और आपकी ओनरशिप आपकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक होगी। दैट्स वाई एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर इज कॉल्ड अ पार्ट ओनर इन द कंपनी। सो हमने दोबारा देखा कि बैलेंस शीट पे आप आपको कहाँ पता चलेगा कि शेयर्स कितने हैं और उसकी डिटेल्स क्या होती हैं। तो वो सारी आपको लायबिलिटी साइड पे आप देखेंगे तो ओनर्स इक्विटी में आपको इस सेक्शन में सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो I showed you some examples of balance sheets, उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा I would encourage you again to go to the websites of famous companies and see their balance sheets, how they show their owners equity in there. अब जब किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स देखते हैं, तो ट्राई टू लुक एट ऑल द स्टेटमेंट्स, सारी स्टेटमेंट्स देखें और डिटेल में जो रिपोर्ट होती है वो सारी पढ़ें, बजाय इसके कि आप स्पेसिफिक सेक्शंस को समझने की कोशिश करें। इट विल बी मच हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। So try to read the whole balance sheet with notes and all the other accounts, and you will have a much better idea of what the company is all about and वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं और सब चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ लर्निंग स्टफ। Just listening to these lectures and doing assignments and quizzes, midterms and final exam, it is not going to take you much higher. So आप कोशिश करें कि टेक योर ओन इनिशिएटिव, आप खुद से चीज़ें देखें, जो चीज़ें आप यहाँ समझ रहे हैं इनको अप्लाई करें, देखें और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स वगैरह देखें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड खास तौर पर कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स जो उनकी हर साल आती हैं वो देखें और उसमें उनकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ें। स्टार्ट विद योर फेवरेट कंपनी, इसलिए कि जिस कंपनी में शायद इंसान का इंटरेस्ट होता है उसमें बंदा ज़रा ज़्यादा शौक से चीज़ें देखता है। स्टार्ट विद योर फेवरेट कंपनी एंड सी कि उनकी स्टेटमेंट्स में क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पीछे क्या हुआ है। सो इट विल गिव यू एन आइडिया कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। फ्यूचर में जब आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी अपने एनालिसिस करने। शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी. These are shown under the equity section. Right, again they are called the owners of the company and they are shown under the equity section. However, the shares are purchased by company are shown on the asset side of the company under the head of marketable securities. And again, देखिए अगर आप किसी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए तो वो उसकी लायबिलिटी साइड पे ओनर एक्विटी सेक्शन में आएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी की शेयर्स बाय करती है तो वो उसका एसेट होता है। बिकॉज अगर मैं एज अ कंपनी किसी और कंपनी की शेयर बाय करता हूँ तो वो मेरी बैलेंस शीट पे मेरा एसेट आएगा। बिकॉज मैंने वो एक एसेट बाय की और फ्यूचर में मुझे उससे पेमेंट्स मिलने वाली हैं, डिविडेंड पेमेंट्स होंगे। अगर मैं उसको सेल कर दूंगा मुझे कैपिटल गेंस मिलेंगे, तो वो एसेट साइड पे आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी सेक्शन में। हमने देखा था कि बॉन्ड्स में भी ये सिचुएशन थी कि जब कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है तो वो पैसा इकट्ठा करती है टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट, टू फाइनेंस बाइंग ऑफ मशीनरी और मेनी अदर थिंग्स। किसी भी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आप बॉन्ड इशू कर सकते, कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। तो जब कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है तो दैट कम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी, बिकॉज उन्होंने पैसा उधार लिया लोगों से जो फ्यूचर में उन्हें वापस करना है। बट अगर कंपनी किसी और कंपनी के बॉन्ड्स बाय करती है तो वो उसका एसेट होता है। बिकॉज इस कंपनी को फ्यूचर में किसी और कंपनी के हमने किसी और कंपनी को उधार दिया और वो कंपनी हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करेगी और फाइनली हमारी प्रिंसिपल वापस करेंगी। सो जो हम किसी और कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं या बॉन्ड्स बाय करते हैं तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के सेक्शन में हमारे एसेट्स में आते हैं। Remember that shares are distinguished from the bonds because shares represent ownership, where a bond is a debt instrument. So we've talked about this a few times before, but I will repeat again because this is a very important distinction, and you should have this very clear in your mind. Remember the shares. जो shares हैं, they are distinguished from bonds because share represent ownership. जो भी शेयर होगा वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप, whereas बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो बॉन्ड है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। सो याद रखें कि अगर आप कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहते हैं तो डिसाइड आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट में लोगों को ओनरशिप देना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर
equity financing, आप शेयर्स इशू करके लोगों को बिजनेस में हिस्सेदार बना लें, एंड जब हिस्सेदार वो बनेंगे तो वो आपके साथ प्रॉफिट्स भी बिजनेस के शेयर करेंगे और लॉसेस भी शेयर करेंगे. सो लॉसेस भी शेयर करेंगे, दैट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम ये है कि आपके जो शेयर होल्डर्स नहीं बनेंगे वो इन परपेचुइटी से मुराद है कि बहुत लंबे अरसे तक जब तक वो शेयर सेल नहीं करते, एंड वो हो सकता है पोटेंशली हमेशा अपने पास रखें. जब तक शेयर उनके पास रहेगा तब तक आपको अपने प्रॉफिट्स उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे, आपके जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे. दूसरी साइड पे अगर आप बॉन्ड इशू करते हैं, तो बॉन्ड इशू करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे. अगर आपको उससे अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो आप अपने बॉन्ड होल्डर्स को पैसा वापस कर देंगे. इंटरेस्ट पेमेंट्स जब कंप्लीट हो जाएंगी, जब टर्म बॉन्ड की पूरी हो जाएगी, आप उनको प्रिंसिपल वापस कर देंगे. यू विल हैव नथिंग टू डू विद देम एनी मोर. और इसका ये फ़ायदा है कि ज़्यादा लॉन्ग जिन लोगों के साथ पैसा लेते हैं वो बहुत लॉन्ग लंबे अरसे तक आपके साथ स्टिक नहीं रहते हैं. हमेशा के लिए तो स्टिक नहीं रहते, शेयर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है. लेकिन नुकसान बॉन्ड्स में ये है कि इन केस के आपने बॉन्ड्स इशू करके कोई प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट वो फ्लॉप हो जाता है, प्रोजेक्ट वो नहीं चलता, फेल हो जाता है, तो अगर आपकी कंपनी लॉसेस में चली जाती है और आप पे बैक नहीं कर सकते बॉन्ड होल्डर्स को, तो आप बॉन्ड होल्डर्स कैन पोटेंशली बैंकरप्ट यू. वो आपको बैंकरप्ट करके भी अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं, बिकॉज दे आर अंडर नो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस टू शेयर लॉसेस विद यू. एंड ऑब्वियसली दे आर अंडर नो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस टू शेयर प्रॉफिट्स विद यू. वो ना प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो लॉसेस भी शेयर नहीं करना चाहते. वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट उनको लगाओ, सिर्फ अपने इंटरेस्ट से है और अपनी प्रिंसिपल पेमेंट से है. इफ यू कैन मेक इट देन इट इज़ वेरी गुड. इफ यू कैन नॉट मेक इट यू आर इन ह्यूज ट्रबल. सो before finalizing on any type of financing, please keep these two things very clear in your mind कि आपके प्रोजेक्ट की क्या खसूसियात हैं और आप किस तरह के स्टॉक होल्डर्स, आप किस तरह के इन्वेस्टर्स आप बिजनेस में चाहते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स या स्टॉक इन्वेस्टर्स. सो द बॉल विल बी इन योर court in future when you will be in a position to make the decisions. So make the decisions with the best frame of mind. Another thing about the shares is to remember that par value is the value when they are issued. The market value of share changes with investor perception about the company's future and supply and demand of situation. So par value is the value when they are issued. Par value of the shares is the value when they are issued. Shares issue कब होते हैं? देखिए, एक कंपनी प्राइवेटली भी पहले काम कर सकती है एंड उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट हो सकती है और उसके बाद वहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा कर सकती है. तो पहली दफ़ा जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. आपको शायद आपने इसके बारे में सुना भी हो, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं. और जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पहली दफ़ा शेयर की प्राइस जो शेयर की प्राइस वहाँ पे दी जाती है, इट इज़ कॉल्ड पार वैल्यू, जिस पे शेयर्स इशू होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स को. इट इज़ कॉल्ड पार वैल्यू. When they are issued, the market value of the shares change with investors' perception about the company's future and supply and demand of the situation. अब उसके बाद ऑब्वियसली जब पहले IPO के बाद शेयर इशू होते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आपके शेयर्स इशू तो एक दफ़ा हो गए, उसके बाद आपकी कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स की क्या परसेप्शन है आपके स्टॉक्स के बारे में. इफ इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें. अगेन मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने देखें, ऑल दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड. मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्ट इन पॉजिटिव net present value projects that will maximize the wealth of the shareholders. अगर कंपनी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज इन्वेस्टर्स विल बी पॉजिटिव कि इस कंपनी ने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और फ्यूचर में इनको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है. दे वुड लाइक टू शेयर दैट रिटर्न विद यू एंड दे वुड लाइक टू बाय मोर एंड मोर शेयर्स ऑफ योर कंपनी. जब वो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी. सो देयर इज अ लॉजिकल लिंक बिटवीन इन्वेस्टिंग इन positive net present value projects and value of the shareholders and maximizing the value of the shareholders through increase in the share price. So अब आपको थोड़ा बहुत लिंक समझ आना शुरू हो गया. Okay, why it is so important to invest in positive net present value projects? Right, so आगे चलते हैं. So do not confuse the par value with the market value of the shares. So par जो
डेट में तो डिस्टिंक्शन काफ़ी क्लियर होती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स में मैंने आपको बताया जब स्टॉक पहली दफ़ा इशू होते हैं दैट इज़ द पार वैल्यू, लेकिन जो प्राइस हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो हमें मिली होती है, दैट इज़ नॉट द पार वैल्यू, दैट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो मार्केट वैल्यू डिपेंड कर रही होती है डिमांड एंड सप्लाई और परसेप्शन और इस तरह की चीज़ों पे। पार वैल्यू इज़ प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, पार वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होती है। एज वी हैव स्टडीड द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट लैंड सिक्योरिटीज डायरेक्टली टाइड टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग रियल एसेट, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग थ्रू इक्विटी? सो एडवांटेजेस क्या है? हम पहले भी इस बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। आई विल अगेन टॉक अबाउट दिस। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। Equity financing gives the flexibility that you do not have to make regular payments. देखें एक बात इसमें है कि equity financing में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको रेगुलर पेमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें लेट मी शो यू सिचुएशन कि अगर आपने इक्विटी इशू कर दी और उसने आपने पैसा इकट्ठा किया और आपने वो सारा पैसा जो है वो मुख्तलिफ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में लगा दिया है और अब आप एक साल डिविडेंड पे नहीं करना चाहते बिकॉज आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में रिटर्न शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। आप डिविडेंड नहीं देते बिकॉज अगर डिविडेंड दे देंगे आप तो क्या होगा, डिविडेंड दे देंगे तो पैसा उनके पास चला जाएगा, दैट मनी इज गॉन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू नॉट पे डिविडेंड एट ऑल, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू आर नॉट अंडर एनी कंपल्जन टू गिव डिविडेंड एवरी ईयर, आप हर साल डिविडेंड आपको देने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी कंपनीज ऐसे जो हाई ग्रोइंग कंपनीज होती हैं वो शुरू के काफ़ी लंबे अरसे तक कोई डिविडेंड नहीं देती। माइक्रोसॉफ्ट वाज अ ग्रोइंग कंपनी टू बिगिन विद, इट वाज ग्रोइंग, उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था एंड दे डिड नॉट पे एनी डिविडेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कंपनी मेच्योरिटी लेवल्स पे अब आई है तो आई थिंक नाउ दे पे सम डिविडेंड्स, बट शुरू में वो कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहे थे। गूगल इज अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करी है, दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप गूगल की लास्ट एक्विजिशंस देखें तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किए। आप देखें गूगल ने यूट्यूब बाय कर लिया था, यूट्यूब वाज अ बिग कंपनी। जब उन्होंने देखा कि यूट्यूब इज अ मार्केट चेंजर काइंड ऑफ थिंग इन सर्च एंड दिस एंड दैट, सो दे बॉट यूट्यूब। सो यूट्यूब बाय करने की वजह से उनकी वैल्यू बढ़ी। अब वो पैसा जो यूट्यूब बाय करने के बजाय वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दे सकते थे, डिविडेंड दे देते तो फ्यूचर में उनकी अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर में जो उनकी जो वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही थी वो ना होती, बट दे मेड द डिसीजन टू बाय यूट्यूब। और उनको ये मसला नहीं था कि उन्होंने बॉन्ड होल्डर्स पैसा लिया हुआ है एंड दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन यूट्यूब बिकॉज दे हैव टू गिव द मनी बैक टू द बॉन्ड होल्डर्स। सो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अगर एक और मैंने एग्जांपल आपसे शायद पहले भी डिस्कस की थी कि फेसबुक बॉट व्हाट्सएप। आप सारे यंगस्टर्स हैं, आई थिंक आप लोग ये सब चीज़ें यूज़ भी करते हो कि फेसबुक का अकाउंट आजकल बहुत कॉमन हर बंदे के पास होता है। फेसबुक कंपनी बॉट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज़ अ वेरी फेमस कंपनी। उस पर आप इंटरनेट को यूज़ करके एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं मोबाइल्स पे, और मोबाइल्स पे चलता है ज़्यादा एंड दैट हैज़ ग्रोन अ लॉट। और अब फेसबुक ने अब अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए व्हाट्सएप 19 बिलियन का बाय किया। वो 19 बिलियन में से कुछ पैसे वो शेयर होल्डर्स को भी दिए जा सकते थे लेकिन नहीं दिए, उन्होंने उसको बाय किया ताकि वो फ्यूचर में शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकें। सो इट डिपेंड्स कि कंपनी कौन सी स्टेज में, लेकिन अगर कंपनी के पास बहुत सारी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकती है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन द पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर, राइट। सो आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ अ डेट और बॉन्ड यू हैव undertaken a promise to pay a fixed rate of return, but in case of shares no fixed rate of return is paid, only dividend is paid on net income according to the decision of the board of directors and management. Again वही बात हो रही है कि अगर आपने सिर्फ बॉन्ड्स इशू किए हैं और आपको सिर्फ डेट है, then you don't have this liberty to invest in every project. तो हमने ये भी देखा, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स पहले ये भी देखा था कैपिटल रेशनिंग कैसे होती है। अगर आपके पास कैपिटल इतना नहीं है, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं लेकिन आपको इतना कैपिटल नहीं है, तो फिर आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था उस टाइम। आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन से प्रोजेक्ट्स की है और मैक्सिमम बजट आपका कौन से प्रोजेक्ट्स की कम्बिनेशन पे यूटिलाइज हो रहा है, वो वाले प्रोजेक्ट्स आपने यूज़ करने हैं। In this case, this is a kind of a capital rationing as well,
बिकॉज आपके पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स पड़े हों किसी सिचुएशन में, लेकिन अगर आपकी फाइनेंसिंग सारी बॉन्ड फाइनेंसिंग है या मेजोरिटी ऑफ द फाइनेंसिंग बोर्ड फाइनेंसिंग है, तो आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज आप इसलिए नहीं कर पा रहे, फाइनेंसिंग तो आपके पास है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा रिटर्न ना मिले, और उस अरसे में अगर आप बॉन्ड होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे ना कर सके तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैपिटल रेशनिंग। सो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है बॉन्ड्स इशू करने का, और एक बड़ा एडवांटेज है इक्विटी इशू करने का। अब जो डिविडेंड पे होता है वो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होता है वेदर टू पे द डिविडेंड और नॉट। अब एक और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एप्पल की अगर आप बात करें तो एप्पल काफ़ी अरसे से इट वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। स्टीव जॉब्स वाज रनिंग एप्पल क्वाइट वेल, और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए, आईफोन, आईपॉड्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इवन आईपैड्स भी उन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए मार्केट में। तो कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें वो इन्वेस्ट कर रही थी, और जो उनकी शेयर प्राइस थी वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही थी, शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रही थी। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद दे हैव अ सेटबैक। यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूँ कि एप्पल was so dependent on Steve Jobs, because Steve Jobs ने वो कंपनी स्टार्ट की, फिर बीच में वो छोड़ के चले भी गए, लेकिन फिर वापस आए, एंड एप्पल का एक रिवाइवल हुआ और एप्पल आगे चलना शुरू हुई। अब स्टीव जॉब्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर एप्पल, एंड ऐसा भी होता रहा है कि जब स्टीव जॉब्स की हेल्थ डाउन होती थी तो एप्पल की शेयर प्राइस नीचे आ जाती थी। जब स्टीव जॉब्स को लाते थे, लोगों को शो करते थे, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आता था और शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती थी। तो स्टीव जॉब्स वाज दैट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर एप्पल। Anyways, as all of you know that he sadly died a few years ago, and उनके मरने के बाद एप्पल is still going good, लेकिन अब वो उस तरह से शायद एप्पल भी थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल तक की तरफ जा रही है। पहले बहुत ग्रो कर रही थी, अब उतना ग्रो नहीं कर रही, और अब मसला, अब अक्सर उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं उसमें ये मैनेजमेंट से ये डिस्कशन होती है कि उनके पास आई थिंक दे हैड अबाउट $160 billion ऑन देयर बैलेंस शीट, और वो अब शेयर होल्डर्स का कंसर्न है कि इफ यू डोंट हैव एनी गुड अपॉर्चुनिटीज देन गिव अस डिविडेंड्स, हमें पैसे दें। मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। सो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कंपनी के अंदर। सो अब जब आप कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखें किसी कंपनी की, तो आप जरूर देखें कि उनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और वो उस पैसे को पे आउट कैसे करें, दे रहे लोगों को या फिर नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू कैन फाइंड आउट दिस डिटेल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। Go to Apple's website, see their statements, तो आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होने शुरू हो जाएगा इन सब चीज़ों। Right, so again, why raise money through equity? You have no obligations to pay fixed dividend to common shareholders, but if the company raises money using bonds, then it will have to pay a fixed amount of interest or markup regularly for 2 years. Again, you are under no contractual obligation to pay fixed dividend to common shareholders. If you want to pay dividend, that is, अगर देखिए इसमें कंपनीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में डिसाइड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मोस्टली होते हैं वो उनको फायर या हायर कौन करता है? शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाते हैं। सो ये है कि इसमें कंसर्न, अगर शेयर होल्डर्स चाह रहे हैं कि उन्हें डिविडेंड चाहिए और वो समझते हैं कि कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पुश कर सकते हैं कि डिविडेंड आप अनाउंस करें, और जो मैनेजमेंट होती है वो उस टाइम बताएगी फिर कि हमारे पास हैं प्रोजेक्ट्स के नहीं है। अगर हैं तो इट्स गुड, आप उसमें इन्वेस्ट करें, अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू गिव द मनी बैक टू द पीपल। और एक बात इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम याद रखेंगे, मैनेजमेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपके पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, इसलिए कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, आपकी शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी, वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं होगी। डिविडेंड उस केस में दें जब वाकई आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैनेजमेंट, और ये डिसाइड मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करना होता है, एंड इस पे काफ़ी इश्यूज़ भी होते हैं और चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप खुद इस बात को याद रखें कि अगर आपके पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं और आप फिर भी पैसा उसमें नहीं लगाते, शेयर होल्डर्स को वापस कर देते हैं, तो इन द लॉन्ग टर्म योर शेयर होल्डर वैल्यू विल नॉट बी मैक्सिमाइज्ड एंड योर शेयर प्राइस विल सफर। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये है कि नेवर इन्वेस्ट द मनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिंग। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक्विजिशन सिर्फ इसलिए कर रही होती हैं अपना नाम बड़ा करने के लिए, ऐसी चीज़ें करने के लिए। अगर सिनर्जीज का हमेशा कहा जाता है कि सिनर्जीज होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। सो इफ़ यू अगर आप
नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे और उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डूइंग दैट. जस्टिफाई तो इंसान हर चीज़ को कर सकता है, लेकिन इफ़ यू जस्टिफाई देम ऑन द रॉन्ग रीजंस देन योर शेयर प्राइस विल सफर इन द फ्यूचर. सो अगर आपके पास नहीं है पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स, तो जस्ट गिव द मनी बैक टू द शेयर होल्डर्स. दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा. Hewlett Packard, HP is a huge corporation. HP के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स अपने अक्सर देखे होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी आपको नज़र आते हैं. तो यहाँ पे मैं जो HP की एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ. HP ने 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आती है 2007, 8 या 9 में. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द डेट, बट यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड आउट. मैं आपको थोड़ा सा कार्ड देना चाहता हूँ. 2009 में एक कंपनी को एक्विजिशन की. इट वॉज अ ब्रिटिश कंपनी कॉल्ड ऑटोनॉमी, और वो कंपनी जो उन्होंने बाय की, दे बॉट इट फॉर अबाउट $11 बिलियन. दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी. $11 बिलियन की उन्होंने कंपनी खरीदी. और जो HP ने जब ये कंपनी खरीदी तो दे वर नॉट, तो कंपनीज डिफरेंट. ऑटोनॉमी जो HP थी वो कंप्यूटर्स बनाती थी. ऑटोनॉमी वाज डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ कंपनी. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन ऑफ बाइंग इट. उन्होंने काफ़ी सिनर्जीज उस तरह के डिसीजन बताया कि इसका में ये फ़ायदा ये है वो है सब कुछ, लेकिन इट वाज अ बैड डिसीजन. एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि 1 साल के बाद वो जो कंपनी है जो अपनी बैलेंस शीट पे ऑब्वियसली अगर हमने कंपनी 11 बिलियन की बाय की है तो हम अपनी बैलेंस शीट पे उसकी 11 बिलियन वैल्यू शो करेंगे, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू बड़ी ड्रामेटिकली डिक्रीज हुई और $3 to 4 बिलियन पे आ गई. 1 साल के बाद इसको एक बड़ा केस चला. HP के जो CEO हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा, नया CEO आया, कंपनी का बड़ा लॉस हुआ, शेयर होल्डर्स ने बड़ा पैसा निकाला कंपनी से. सो अगर आप ये देखना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जाके HP ऑटोनॉमी AUTONOMY HP ऑटोनॉमी केस देख लें तो आपको पता चलेगा. बाद में कोर्ट केस भी चला था इसका. सो मकसद मेरा कहने का ये है कि इफ़ यू डोंट हैव पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स देन गिव द मनी बैक टू द शेयर होल्डर्स, और आप शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दें. उसको गलत प्रोजेक्ट्स में पैसे को कभी ना लगाएं. अगर आप शेयर होल्डर्स को पैसा वापस नहीं कर रहे और आपने सिर्फ अपनी बैलेंस शीट पर रखा हुआ है, देन इट्स नॉट गुड एज वेल. क्यों अच्छा नहीं है? वो इसलिए अच्छा नहीं है कि आप वो वाला पैसा अगर आपने कैश की सिचुएशन में रखा हुआ है, देन यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग ऑन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. अगर आपने उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में बाय किया हुआ है, तो देन व्हाट यू आर बाइंग इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच यू आर गेटिंग इज वेरी लेस. So there is no point just piling up money on the balance sheet. Either give it back to the shareholders or invest in net present value projects. If you have positive net present value projects, that is very good. आप उसमें इन्वेस्ट कर दें. अगर नहीं है तो शेयर होल्डर्स को वापस कर दें. देयर इज नो पॉइंट पालिंग अप द मनी. एंड कभी भी नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ना करें. और मैंने आपको कहा अपने एस्टिमेट्स और सब चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से देख लें, बिकॉज दैट विल हैव huge repercussions for you in the future. अगर आप if you don't do the analysis well, you can well be in the situation like autonomy, जो HP ने autonomy जैसे बाई की. एंड देख लें अगर CEO can go, then financial managers और बाकी लोगों का जाना बड़ा आसान होता है. So you have to be very careful with your analysis. If the company does not pay on time, right, so हम bond holders की दोबारा देख लेते हैं, finally फिर बता के चलते हैं. But if the company raises money using bonds, then it will have to pay a fixed amount of interest or markup regularly for 2 years. If the company does not pay on time, you are declared defaulted and your business can be closed, and the lenders, bond holders can sell the assets, company's assets to recover their money. Right, so we discussed this possibility before. The value of direct claim security, because the value of direct claim security is derived from underlying real asset. It can be thought of as a piece of paper that generates a certain cash flow over the period of time. Share certificate is a piece of paper that represents some other real assets and it generates future cash flows. जो वैल्यू होती है डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटी की, वो अंडरलाइंग एसेट्स आते हैं. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो आप उससे कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं. जब पैसा आपके पास आता है तो वो पैसा आप रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी बाय करते हैं, कोई नई फैक्ट्री लगाते हैं, और उससे फिर कैश फ्लोज आती हैं. उस कैश फ्लो से आप बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा वापस करते हैं, प्रिंसिपल वापस करते हैं, उसके बाद आपको फ्यूचर में से प्रॉफिट्स मिलते हैं. इसके साथ ही जब हम देखते हैं तो इक्विटी में भी ऐसे होता है. इक्विटी से भी जब आपके पास फाइनेंसिंग आती है तो आप वो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं. जब उनसे आपको रिटर्न मिलता है तो आप इक्विटी होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं. So equity can be thought of a piece of paper that generates a certain cash flow over a period of time.
शेयर सर्टिफिकेट इज ए पीस ऑफ पेपर दैट रिप्रेजेंट सम अदर रियल एसेट्स. ऑब्वियसली जो शेयर सर्टिफिकेट होता है दैट रिप्रेजेंट सम अदर रियल एसेट्स एंड इट जनरेट्स फ्यूचर कैश फ्लोज. जो फ्यूचर कैश फ्लोज होती हैं वो दो किस्म की होती हैं. वन इज डिविडेंड यू रिसीव्ड एज शेयर होल्डर्स. पहली जो आप डिविडेंड रिसीव करते हैं शेयर होल्डर्स. सेकंड इज कैपिटल गेंस. कैपिटल गेंस जो आपको मिलते हैं, ठीक है. डिविडेंड तो होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है अगर वो देना चाहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, उसके तो हर साल आपको एक डिविडेंड मिलता है. उसके अलावा आपको हो सकता है कि बाय एनुअली भी डिविडेंड मिलता हो. यू कैन इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है. सेकंड कैपिटल गेन होता है. कैपिटल गेन से मुराद ये कि अगर हमने कंपनी का शेयर बाय किया 100 रुपये का और हम उसको होल्ड करते हैं, हमने उसको होल्ड किया, हमने ब्रोकर के थ्रू एक कंपनी के शेयर बाय कर लिए. हमने जब उसको होल्ड किया तो कंपनी अच्छे पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और उनकी शेयर प्राइस इंक्रीज होती है. इंक्रीज अगर होती है तो वो 150 पे चली जाती है. जब 150 पे जाती है तो हम देखते हैं कि इट इज़ अ गुड टाइम टू सेल दिस शेयर और हम 150 पे जाके शेयर को सेल कर देते हैं. जब हम सेल करते हैं तो हम 150 तो जो हम ऑब्वियसली हमने 100 का बाय किया था 150 का सेल कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट होगा. इसको हम कैपिटल गेन कहेंगे. दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल गेन. सो दो किस्म के कैश फ्लोज होती हैं. वन इज डिविडेंड्स, सेकंड इज कैश फ्लो जनरेटेड बाय कैपिटल गेन. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ टेक्सटाइल कंपनी व्हिच नीड टू रेज द अमाउंट ऑफ ₹1 million टू इन्वेस्ट इन लूम्स, कंपनी कैन रेज द अमाउंट ईदर बाय इक्विटी और बॉन्ड्स. ये एग्जांपल पहले भी हम डिस्कस करते रहे, हम दोबारा से वही देखते हैं क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल. इट इज़ अगर हम एक एग्जांपल को दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंसेस क्या हैं दोनों केसेस में. कंपनी कैन रेज द अमाउंट इधर बाय इक्विटी और बॉन्ड्स. अब ₹1 million कंपनी इकट्ठा करना चाहती है, लूम्स में लगाना चाहती है जो कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो कंपनी इक्विटी भी इशू कर सकती है और बॉन्ड भी इशू कर सकती है. इन केस द कंपनी डिसाइड्स टू रेज इट थ्रू इक्विटी, then it issues the share certificate amounting 1 million and sells them to various interested investors and receives the capital from in the form of equity. अगर कंपनी equity इशू करने का सोचती है तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट जिनकी अमाउंट 1 million होगी उनको सेल कर देगी to various interested investors and उनको 1 million कैपिटल मिल जाएगा. Why do the share certificates carry value? शेयर सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती क्यों है, देखते हैं ये भी. The investment for the shareholders will generate value इसलिए होती है कि the investment for the shareholders will generate cash flows in the form of income and the cash flows in the form of capital gains. इसलिए कि वैल्यू इसलिए कि जो जिसके पास वो शेयर होगा उसको दो किस्म के फायदे होंगे. पहली ये है कि उसको कैश फ्लो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम जो डिविडेंड्स वगैरह मिलेंगे, एंड कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स, या अगर वो शेयर की प्राइस आगे ऊपर जाती है तो उसको वो भी गेन मिलेगा. These cash flows are generated through the underlying asset and obviously ये cash flows generate होंगी through the underlying asset. What is underlying asset? The underlying asset in our case is the looms, the loom machinery which we are investing in. What are these real assets? The real assets in this example are textile weaving looms and fabric prepared by these looms. The cash flows are generated from the sale of this fabric. From these cash flows the company is paying dividends. अब cash flow is generated from the sale of this fabric. Cash flow generate होती है इस fabric को sale करके, and from these cash flows the company is paying dividend. और इस cash flow से company dividend pay करती है. Right? So अब देखते हैं. So let's see. Why raise money through equity? Share value and cash flow from underlying real assets. इसमें हम देखते हैं company's real working assets हमारे क्या है. That has issued the share that is weaving looms. अच्छा, ये कंपनी के रियल एसेट weaving looms जो हैं ये रियल एसेट है जिसके लिए हमने इशू किए हैं शेयर. अब कंपनीज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में क्या आएगा इनकम में? रेवेन्यूज फ्रॉम द सेल ऑफ फैब्रिक. ऑब्वियसली जब हम इन मशीन को यूज़ करके फैब्रिक बनाएंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, जो रेवेन्यू और कैश फ्लोज आएंगे जो हम उस कपड़े को सेल करके बनाएंगे. और डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स कैश फ्लो, फिर हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैश पे आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उन्हें कैश मिलेगा, और साथ कैपिटल गेन्स कैश फ्लोज दो फॉर्म्स हैं. अब जो हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग, एनपीवी क्राइटेरिया, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन और शेयर प्राइसिंग. अब यहाँ पे भी हम कैपिटल बजटिंग और एनपीवी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे जो हमने बॉन्ड्स के केस में भी इशू किया, लेकिन इसमें ऑब्वियसली कैश फ्लोज थोड़ी सी डिफरेंट है. जब हम बॉन्ड्स के केस देखते थे तो उसमें हमारे पास कूपन्स आते थे, कूपन्स को हम डिस्काउंट कर लेते थे ऑन द वेरियस डिस्काउंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द ईयर इन विच वी आर गेटिंग द कूपन, एंड फाइनली जब हमें पार वैल्यू मिलती थी तो उसको हम आखिरी से डिस्काउंट कर लेते थे. इन दिस केस अब क्या होगा, हमें देखेंगे कि हमें कितने डिविडेंड्स मिल रहे हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइनली
डिविडेंड्स कितने मिले, और डिविडेंड्स जो हमें मिले उनको हम डिस्काउंट कर लेंगे वापस, और उसके अलावा कैपिटल गेंस का भी इशू देखेंगे, उसको कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें अब हम फ्यूचर में देखेंगे। सिक्योरिटीज़ वैल्यूएशन, शेयर प्राइसिंग कैसे होगी। राइट, सो शेयर कॉन्सेप्ट। A limited company can raise money by issuing or selling equity in the form of shares. In Pakistan, the par value or face value of each share is generally 10 rupees. It's generally 10 rupees, और companies की different par values हो सकती हैं. By and large, listed companies issue shares with par value of rupees 10. अच्छा, कोई भी लिमिटेड कंपनी है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब एक बात याद रखिए, अब मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आपने वो शायद पहले देखा हो, लेकिन मैं चलिए थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि कंपनी अगर किसी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना चाहती है, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, तो आपकी जो एक्सचेंज होती है उसकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका इतना कैपिटल होना चाहिए, आपके जो अकाउंट्स हैं वो इस तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, बिकॉज लिस्टिंग जब करने जा रहे होते हैं तो आपको सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, जिसमें उन्हें बताना पड़ता है उनका बिजनेस क्या है, वो कैसे फ्यूचर में प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे, और कंपनी की मैनेजमेंट और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद कंपनीज आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवाती हैं, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपकी जो शेयर प्राइस है वो एक प्राइस पे ऑफर की जाती है पब्लिक को, पब्लिक उसको बाय करती है। उसके बाद फिर वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉस्पेक्ट्स and perception in the eyes of the investors. अब पाकिस्तान में जो पार वैल्यू और फेस वैल्यू फी शेयर इज जनरली 10 रुपीज़। जो बड़ी लार्ज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी शेयर की पार वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज ₹10 each. Keep in mind that par value of the share is value when it was issued. When it has gone into the market, it has different value. Again, मैंने बात की par value जब issue होते तब होती है, लेकिन market value is different because constant buying and selling through the brokers stock exchange पे चलती रहती है, और अगर ज़्यादा buying हो रही है तो obviously उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, अगर ज़्यादा selling हो रही है तो प्राइस नीचे आएगी। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें वो इफेक्ट करती हैं। इट्स जस्ट नॉट सिंपली कि शेयर्स के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ डिटेल्स हम इसकी देखेंगे, और लेकिन सब डिटेल्स हम इस कोर्स में कवर नहीं कर पाएंगे। The life of the share is considered perpetual or never-ending going concern, unless of course the company closes down or goes bankrupt. यहाँ पे एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जो शेयर की जो लाइफ ऑफ द शेयर है वो परपेचुअल कंसिडर की जाती है। परपेचुअल से मुराद है हमेशा के लिए। अगर मैं कंपनी का शेयर बाय कर लेता हूँ तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये शेयर मैं कीप करूँगा हमेशा के लिए, और हमेशा मुझे इससे रिटर्न्स फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलते रहेंगे, और अनलेस कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं किया कि कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई। कंपनी स्टार्ट नीदरलैंड से हुई। नीदरलैंड इज टुडेज हॉलैंड। सो सबसे पहली कंपनी जो बनी उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाय नीदरलैंड्स हॉलैंड इन 15th to 16th सेंचुरी। और देखिए जो पहली दफ़ा कंपनी बनी इसमें डिफरेंस क्या था, बाकी उससे पहले भी बिजनेसेस हुआ करते थे, लोग एक दूसरे से बिजनेस करते थे, सब चीज़ें होती थी, लेकिन बिजनेस होता किस लिए था? होता था कि आप अगर एक एक्सपीडिशन से मुराद है कि अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये करती थी कि वो बहरी जहाज़ भेजा करते थे टू एशिया, तो वहाँ से स्पाइसेस और वो सब चीज़ें लेके सेल करते थे, बाय करते थे, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू मेक मनी, सो इट वाज ट्रेडिंग। लेकिन इसमें होता ऐसे था कि आप एक दफ़ा एक सी ट्रिप होता था, और आके कुछ लोगों ने पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता था, उसके बाद प्रॉफिट लेके सारे साइड पे होते थे, कंपनी खत्म हो जाती थी। लेकिन हमने ये देखा है कंपनीज गोइंग कंसर्न जो चलती रहती है हमेशा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने पहली दफ़ा पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ एक बहरी जहाज़ पे सफ़र करेंगे और सामान ला के बेचेंगे और इस तरह करेंगे और जो प्रॉफिट होगा इकट्ठा करेंगे। नो, दे सेड कि आप शेयर्स बाय कर लें, अब जो प्रॉफिट्स होंगे वो हम शेयर करेंगे और कंपनी चलती रहेगी। पहले दफ़ा कॉन्सेप्ट आया कि कंपनी की परपेचुअल लाइफ वहाँ से स्टार्ट हुई। उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि कंपनीज की परपेचुअल लाइफ परपेचुअल से मुराद है कि हमेशा के लिए चलेंगी, और उससे पहले सिर्फ छोटी मोटे मतलब एक ट्रेडिंग प्रोजेक्ट किया, उसके बाद कंपनी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री ऐसा हुआ कि उन्होंने शेयर्स दिए लोगों को, उन्होंने कहा कि वी विल बाय एंड सेल स्टफ एंड मेक मनी, और उसके बाद ये चलता रहेगा सिलसिला। सो वहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, एंड कंपनीज की वैल्यू बड़ी इंक्रीज होने की मेन वजह ये होती है कि दे आर नेवर एंडिंग, दे आर गोइंग कंसर्न, और अगर एक कंपनी एक चीज़ लंबे अरसे के लिए चलने वाली तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। As the financial health and cash flows and income of the company changes with time, the market value or price of share changes, even though its par value is fixed.
Market prices also change depending on the supply demand of share and also on speculation sector. देखिए स्पेकुलेशन पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं. अगर आप एंड ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम भी है. स्पेकुलेशन अक्सर ये होता है कि कुछ लोग ये करते हैं, वो देख कि कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है या कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी है. अगर सब लोग इन्वेस्टर को लगता है कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो किसी इन्वेस्टर ने अगर लो प्राइस पे वो शेयर बाय किए थे तो वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं मार्केट में. जब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं उसके अंदर तो प्राइस ऊपर हो जाती है. जब प्राइस ऊपर जाती है लोगों को ऐसे पता चलना शुरू हो जाता है ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या होगा फिर ऐसा सा. लेकिन जो जिसने स्पेकुलेशन किया वो उस टाइम अपना पैसा निकालेगा और फिर वो सारी प्राइस नीचे आ जाएगी, लोगों का काफ़ी नुकसान होगा. सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं. मैं आपको ऐसा ऐसा इसके बारे में बताऊंगा. एक और कॉन्सेप्ट जो छोटा सा मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ इलीगल. इनसाइडर ट्रेडिंग असल में ये होती है कि लेट मी गिव एन एग्जांपल विद टू कंपनीज. एक कंपनी है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक कंपनी कोई और कंपनी, कोई भी अदर कंपनी, राइट. तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं वो कैंसर रिसर्च पे काम कर रहे हैं और कैंसर रिसर्च में और जो इनसाइडर्स हैं वहाँ के साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है वो कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लेते हैं. जब वो कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लेते हैं उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. तो अभी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है. तो वो जो साइंटिस्ट हैं वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बता देता है कि दूसरी कंपनी में या फिर कोई और बंदा भी हो सकता है इंडिविजुअल में कि आप इस कंपनी की शेयर बाय कर लें बिकॉज ये न्यूज़ अभी आने वाली है, हमने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर की प्राइस बहुत ऊपर जाएगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बाद में आप सेल कर दीजिएगा. अगर ये इन्फॉर्मेशन ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और किसी और बंदे को देते हैं और वो काफ़ी अमाउंट्स में शेयर बाय कर लेता है, तो क्या होगा फ्यूचर में जब वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आएगी तो लोग उसकी बेसिस पे एक्ट करके बहुत ज़्यादा शेयर्स बाय करेंगे बिकॉज इट इज़ अ बिग इशू. कैंसर का इलाज अभी दरियाफ्त हो जाए और लोग ठीक होने शुरू हो जाए तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट. सो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर बिकॉज फ्यूचर में प्रॉफिट्स बहुत आने वाले हैं यहाँ पर एंड एवरीबडी वांट्स टू शेयर दिस प्रॉफिट्स. सो लेकिन उस बंदे को तो बहुत फ़ायदा होगा जिसने बहुत कम प्राइस पे लिया था बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट पब्लिक. और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो दोनों लोग, जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक्ट करके शेयर्स खरीदता है, दे हैव डन एन इलीगल थिंग और दोनों को सज़ा भी मिल सकती है. मोस्टली सज़ा वेस्ट में तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान में भी इनसाइडर ट्रेडिंग पे बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जाता है और सज़ाएँ मुकर्रर की गई. आजकल देखें आप शायद सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि अगर एक बंदा कोई इनसाइडर है तो वो दूसरे को बता देता है तो पता कैसे चलेगा कि क्या कि इसने इसको इन्फॉर्मेशन दी. देखें आजकल हम ये देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाती है जिसकी बेसिस पे फ्यूचर में अब काफ़ी शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाने वाली है, तो ये अब बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन से कुछ अर्सा पहले कौन से बंदे ने कितने अमाउंट में शेयर्स बाय किए. तो एक बंदा अगर सस्पिशियसली हाई अमाउंट्स ऑफ शेयर्स बाय कर रहा है किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन से पहले, सो ही इज़ सस्पिशियस और उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और ऐसा ही करते हैं. और हमारे पास बड़े अच्छे कंप्यूटर एल्गोरिथम्स मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से अब ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. So that's what happens in the markets. Insider trading is part of the market and that's why I introduced this concept to you. Shares of listed public companies are traded in stock exchanges like Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange, Islamabad Stock Exchange. You can buy and sell shares over the phone or over computer through your broker whose agents jobbers are trading at the exchange, right? So पाकिस्तान में 3 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज. आप वहाँ पे अपने शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं थ्रू योर ब्रोकर whose agents jobbers are trading at the exchange. जो ब्रोकर होता है उसके जो एजेंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली मौजूद होते हैं और वो आपके लिए शेयर्स बाय सेल करते हैं. देखिए आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते. अगर आप लाहौर स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे बाय नहीं कर सकते कि आपको फिजिकली वहाँ पे जाना नहीं पड़ता. आप या तो किसी ब्रोकर के पास जा सकते हैं. हर स्टॉक एक्सचेंज अपने ब्रोकर्स की लिस्ट दी होती है कि इनसे आप शेयर्स बाय कर सकते हैं. ब्रोकर के पास जाएंगे तो आपको वो बता देगा ये है शेयर की प्राइस, आप इस पर बाय करें. ब्रोकर का थोड़ा सा कमीशन होता है, वो आप उसको देते हैं और वो आपके लिए शेयर बाय कर लेता है या सेल कर लेता है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू कैन नॉट गो टू अ स्टॉक एक्सचेंज एंड फिजिकली बाय द शेयर्स योरसेल्फ. यू हैव टू ऑर्डर द शेयर्स थ्रू अ ब्रोकर एंड वो आपके बाय करेगा, सेल करेगा और वो आपको वेरियस और फैसिलिटीज़ भी देता है. सो वैसा कि कैसे आपने अगर कुछ शेयर बाय करना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू बाय करना पड़ेगा. यू मेक पेमेंट टू योर ब्रोकर थ्रू अ ब्रोकरेज अकाउंट at one of the banks in the stock exchange or through cash soon after the trade is made.
सो ब्रोकर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी होगी उसमें उसका कुछ कमीशन भी होगा, एंड डोंट वरी अबाउट द कमीशन, इट इज़ वेरी माइनर, कुछ पैसे कमीशन होता है शेयर बाय करने या सेल करने पे, सो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग. Shares concept. Shares of private limited companies which are not listed can also be bought and sold privately. Private limited companies हमने शुरू में देखी थी कि क्या होती हैं. अगर आपको याद नहीं है तो go to the first few lectures, you will find out what are private limited companies. जो उनके शेयर्स हैं वो भी बाय और सेल किए जा सकते हैं privately. And the corporate law authority and registered joint stock companies need to be informed. But you have to inform corporate law authority and registered joint stock companies about the transaction. Now coming to the types of equity, there are two types of equity. One is called common stock and the other is called preferred stock. Common stock is the real equity. जो real equity होती है वो common stock होती है. Preferred stock में काफ़ी सारी खुसूसियात debt जैसी होती हैं. So हम देखते हैं what is the difference between these two. It is the company's most common kind of equity as compared to preferred stock. Common shareholders are owners who have voting rights in the management decisions. कॉमन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही रियल ओनर्स होते हैं बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. ऑब्वियसली आपके पास अगर वोटिंग राइट नहीं है, जो डेट होल्डर्स के पास नहीं होता, देन यू आर नॉट वेरी इफेक्टिव. आप कुछ आपकी बात की कोई वैल्यू वक्त तो नहीं है अगर आपके पास वोटिंग राइट नहीं है. लेकिन कॉमन शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है जिसको एक्सरसाइज करके वो मैनेजमेंट के डिसीजंस को भी चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट की कंपनसेशंस भी देख सकते हैं, सब चीज़ें वो कर सकते हैं. बट यू हैव टू हैव अ वोटिंग राइट फॉर दैट, एंड कॉमन स्टॉक के साथ वोटिंग राइट मिलता है. पाकिस्तान में इसको कई दफ़ा ऑर्डिनरी स्टॉक भी कहा जाता है. Common shareholders are owners who receive a dividend, share of profit or net income proportionate to their shareholding. Common shareholders को dividend मिलता है और जो dividend मिलता है share of profit or net income proportionate to the shareholding. अगर हमें जो dividend अनाउंस किया जाता है वो एक शेयर के लिए किया जाता है. अब मेरे पास अगर 100 शेयर पड़े हुए तो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा. So that is what I mean by income proportionate to their shareholding, which varies depending on the net income for that year and decision of the board of directors regarding how much to retain and reinvest. Obviously जो डिविडेंड है वो डिपेंड करेगा कि इनकम कितनी है, आपके पास नेट कैश फ्लोस हैं कितनी, एंड आपने उसमें से कितनी इनकम को आपने नेट पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में लगाना है और कितनी इनकम को वापस देना. सो दैट इज अ डिसीजन बाय द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Cash flows associated with common shares will be used to calculate the expected price of share. Then we compare market value of the stock. Cash flows associated with common shares will be used to calculate the expected price of the share. Then we compare it with the market value of the stock. हम एक और चीज़ है, cash flow associated with common shares. हम cash flows के थ्रू शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी स्टॉक की, फिर हम उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद स्टॉक्स. नंबर वन इज डिविडेंड एंड सेकंड इज कैपिटल गेन. डिविडेंड अगेन मैं थोड़ी सी चीज़ों पर दोबारा से रोशनी डाल देता हूँ. डिविडेंड यू रिसीव एज शेयर होल्डर. In case of common stocks, these are unpredictable and changing as to bond valuation, where the coupon receipts are generally constant and regular time interval. Obviously, common stock वाले जो होते हैं वो ownership में उनका हिस्सा होता है, इसलिए वो जो आपको जो dividend मिलना that is unpredictable and changing. Unpredictable से मुराद है कि हो सकता है हर साल ना मिले, changing से मुराद है कि उसकी वैल्यू चेंज भी होती रहती है. लेकिन in the case of coupon of the bonds वो सेम वैल्यू रहती है और हर साल मिलती है. Therefore, we can use annuity formula. So हम annuity formula use कर सकते हैं. But when we are talking about common shares, dividends are not fixed. जब annuity formula हम तब use कर सकते हैं जब एक constant stream of payment आ रही हो, और वो हमारी coupons के केस में तो आ रही है लेकिन dividends के केस में नहीं आ रही. So dividend के केस में हो सकता है कि साल dividend हो कि साल ना हो. So फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे annuity formula को हम use नहीं करेंगे. But when we are talking about common stock shares, dividends are not fixed. That makes the valuation of common stock different from bond valuation. So difference आ जाता है, इसलिए कि उसमें आपके पास हमारे पास constant payments आ रही हैं. मतलब कि अगर कूपन की पेमेंट है तो हर साल पेमेंट constant पेमेंट आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास हर साल पेमेंट डिफरेंट आएगी. हो सकता है कि साल आए कि साल ना आए. सो हम वो वाला सेम मैकेनिज्म यूज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर equity valuation. We will discuss the details of that in the next lecture. Capital gains. This kind of equity is rare. कैपिटल गेंस को मैंने आपको पहले बता दिया, सो आई वांट टू रिपीट दैट. अगर आप शेयर एक प्राइस पे बाय करते हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाती है, तो आप बड़ी भी प्राइस को सेल करेंगे तो जो आपको फ़ायदा मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल गेंस. सो ये दूसरा फ़ायदा होता है हमें कॉमन स्टॉक में. सो भी हम जब कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन पे आएंगे तो ये चीज़ें देखेंगे कि इनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए अपनी वैल्यूएशन में.
So coming to preferred stock, this kind of equity is rare. Preferred shareholders get a preference or priority over the common shareholders in recovering their money if the company goes bankrupt. Preferred share जो stock होता है वो वैसे रेयर होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो डिफरेंस वो क्या है, जब कोई कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है, जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में से पहले पैसा मिलता है इन केस कंपनी बैंकरप्ट होती है. ऑल द प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, दे मे नॉट गेट वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते. इसमें कुछ डेट की खसूसियात भी हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड इक्विटी. हाइब्रिड इक्विटी से मुराद है एज इट इज़ ए मिक्स ऑफ बॉन्ड एंड शेयर. इट्स ए मिक्स ऑफ बॉन्ड ऑफ शेयर. आपको वोटिंग राइट नहीं है और अगर इन केस ऑफ कंपनी फेलियर आपको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलेगा. सो कुछ डेट के आ जाते हैं, कुछ इक्विटी के इसके अंदर आते हैं. प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स रिसीव अ फिक्स रेगुलर डिविडेंड सिमिलर टू कूपन ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स. सो इनको भी एक फिक्स रेगुलर डिविडेंड मिलता है जो सिमिलर होता है बॉन्ड होल्डर्स से. राइट. So finite investment means you plan to buy the stock and then sell it in a few days or a years. Finite investment से मुराद है कि आप स्टॉक को बाय करते हैं, उसको रिटेन बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं करते, कुछ ऐसा रिटेन करके उसको सेल कर देते हैं. फार्मूला उसका जो होता है वो सिमिलर टू अ बॉन्ड. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट स्टार इज इक्वल टू डिव टी, मतलब ऑब्वियसली जो हमें जो डिविडेंड मिल रहा है डिवाइड बाय 1 बाय आर पी ई रेज़्ड टू पावर टी. जो डिविडेंड हमें मिल रहा है उसको हमने डिस्काउंट करना है ऑब्वियसली ऑन योर रेट ऑफ ऑन योर डिस्काउंटिंग रेट. और फाइनली पी एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पी ई एन. टी इज इक्वल टू ईयर सम फ्रॉम T1 टू Tn. पी एन इज द फाइनल एक्सपेक्टेड प्राइस, जो फाइनल एक्सपेक्टेड प्राइस है उसको भी हम डिस्काउंट कर लेंगे. सो ये मिलता जुलता है काफ़ी जो हम पहले देखते आ रहे हैं. इसमें यहाँ पे कूपन पेमेंट्स आ रही थी, यहाँ पे पार वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे हमारे डिविडेंड्स और फाइनल एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आ रही. अब जो प्रेजेंट वैल्यू शेयर प्राइस की होगी वो डिविडेंड वैल्यू होगी प्लस कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस वैल्यू होगी. द डिविडेंड वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम डिविडेंड कैश स्ट्रीम्स एंड कैपिटल गेन लॉस फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस. राइट. सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल. कंपनी ABC प्रेफर्ड स्टॉक की हम बात करें यहाँ पे, नॉट ऑर्डिनरी स्टॉक. प्रेफर्ड स्टॉक इज ट्रेडेड इन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज ए मार्केट प्राइस फॉर ₹13. 13 रुपीज़ इसकी मार्केट प्राइस. द कंपनी has fixed the dividend to be ₹2 per share. जो dividend fix किया है वो ₹2 per share है. The par value of each share is 10. Par value 10 है. You expect the price to be 13 after 2 years. 2 साल के बाद आप expect करें कि price 13 rupees होगी. So as the investor you expect a minimum required rate of return of 10% because you can earn that much from a bank deposit account almost risk free. देखिए एज ए इन्वेस्टर यू एक्सपेक्ट अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%. आप जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है वो 10% है बिकॉज यू कैन अर्न दैट मच मनी फ्रॉम अ बैंक डिपॉजिट अकाउंट ऑलमोस्ट रिस्क फ्री. आप वो जो बिकॉज जो वो पैसा है वो आप किसी अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप रिस्क फ्री वो पैसा कमा सकते हैं. हम ये डिस्कस काफ़ी दफ़ा पहले कर चुके हैं. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. But stocks are generally more risky investments than bank deposits, so you will only invest in risky stock if the expected return is higher than 10%, let's say 15%. So obviously you want more return from stocks because stocks are more risky than just putting money in your bank. Calculate the fair expected price of the preferred stock. So हम fair और expected price of preferred stock find out करते हैं. Note, we will discuss risk in later in the course. Risk हम बाद में डिस्कस करेंगे और उसको इनकॉर्पोरेट करने का तरीका जब हमारी एक्विटीज का सेक्शन खत्म हो जाएगा तो we'll start discussing risk and all that. Perpetual investment in preferred stock is equal to perpetual investment. हमने जैसा देखा था उसमें सिर्फ we are concerned with the dividend. We are concerned with the dividend एंड हमने उसको अपने डिस्काउंट रेट पे हमने देखा था परपेचुअलिटी की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें C डिवाइडेड बाय R. कोई भी जो भी हमारे पास पेमेंट आ रही है उसको डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है. तो यहाँ पे इन केस द डिविडेंड इज 2 और जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15%. तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है परपेचुअल इन्वेस्टमेंट की वो 13.33 आ रही है. द फेयर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर टू यू इज 13.33. द मार्केट वैल्यू इज ₹13. The market value is ₹13. The market value is ₹13. So the share is worth more to you and its price and then its price in the market. It is undervalued and you will gain value by buying it.
ऑब्वियसली अगर आप दिस डिपेंड्स ऑन दिस डिस्काउंट रेट दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, और इसमें और भी बाकी काफ़ी सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डिस्काउंट रेट दिस शेयर इज अंडर वैल्यूड। आप इसको 13.33 पे वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन इसकी अभी जो मार्केट प्राइस है वो 13 है। सो आपके मुताबिक इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। सो द शेयर इज वर्थ मोर टू यू देन इट्स प्राइस इन द मार्केट, इट्स अंडर वैल्यूड एंड यू विल गेन बाय बाइंग इट। आप गेन करेंगे इसको बाय करने से। हमने फाइनाइट इन्वेस्टमेंट इन प्रिफर्ड स्टॉक, पीवी इज इक्वल टू डिविटी 12/1 प्लस RPET, ये हम पहले भी देख चुके हैं वही फार्मूला। इसमें अब जो फाइनाइट इन्वेस्टमेंट प्रिफर्ड स्टॉक हम देखेंगे तो वो क्या आएगी मेरे पास। पहले जो डिविडेंड था वो 2 हमें पहले साल मिलेगा 1.15, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, इसलिए 1 प्लस जब वो करेंगे तो 1.15 आ जाएगा रेज़्ड टू पावर 1, अब क्योंकि पहले साल हमें मिला है। और सेकंड साल 2 डिवाइड बाय 1.15 रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि हमें दूसरे साल मिल रही है, और 13 रुपये का हम वो दूसरे साल उसको सेल भी कर देंगे 1.15 रेज़्ड टू पावर 2। सो जो इस तरीके से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज 1308, which is not dramatically different from 1333. In this example, perpetual investment in preferred stock is worth more than finite investment. Obviously देखिए perpetual जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लंबे अरसे, वो हमेशा के लिए हम देख रहे होते हैं, और finite इन्वेस्टमेंट होती है कि कुछ अरसे बाद जाके हम सेल कर देंगे। तो perpetual investment has to be more than finite investment because present value in finite streams of ₹2 dividends is more than the present value of the expected future selling price of ₹13. Share price valuation common stock. Finite limited light investment in common stock. It is more common. Need to account for cash flows from variable dividends and estimated selling price. Note that PN depends on div n plus 1. Price at any point in time will always depend on dividends in the following year. Formula is similar to bond valuation equation. So हम इक्वेशन जब देखते हैं परपेचुअल इन्वेस्टमेंट इन कॉमन स्टॉक की, तो हमारे पास डिविडेंड्स की आ रही है। देखें फाइनली जो डिविडेंड पहले साल, दूसरे साल और ये आखिरी साल तक जितने भी डिविडेंड्स हैं, फाइनली जो हमारे पास जो फाइनली से एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है उसको हम डिस्काउंट कर देंगे। पी नॉट PV इज इक्वल टू P नॉट एक्सपेक्टेड और फेड प्राइस, present value of the share. Div 1 is forecasted future dividend at the end of year 1. Div 2 is expected future dividend at the end of year 2. PN is expected future selling price. RC is minimum required rate of return for the investment in common stock for you. Note that dividends are uncertain and N is equal to infinity. So PV share price is dividend value plus capital gains. Dividend value is derived from cash streams, capital gains loss from difference between buying and selling price. So that's what we have been discussing in the past. इसमें कोई ऐसी difference चीज़ नहीं है. I'll stop at this point and अगले लेक्चर से हम प्रॉपर वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे कि शेयर की वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें। आज हमने देखा कि व्हाट इज़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में वो डिफरेंस क्या है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से, और हम किन केसेस में इनको यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमने बेसिक स्टार्ट किया कि हाउ टू वैल्यू इक्विटीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो इन द डिटेल्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन and you will find about the various methods and various theories which go behind that. Thank you very much for your time. See you in the next lecture.